بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وارانسی عدالت نے گیان واپی رپورٹ لیک ہونے پر کورٹ کمشنر کو برطرف کر دیا۔ کمیشن کو مکمل رپورٹ پیش کرنے کے لیے اور 2 دن کی مہلت۔ گیان واپی مسئلے پر سپریم کورٹ میں سنوائی۔ مسلم فریق نے کہا شیولنگ نہیں وضو خانے کا فوارہ ہے۔ سنوائی جمعرات تک ملتوی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہنگامی میٹنگ۔ گیان واپی مسجد اور دوسرے معاملات پر غور کیا گیا۔ اگلے ایکشن پلان پر بات چیت۔ فلسطینی نوجوان کے جنازے پر اسرائیلی فوج کا کریک ڈاؤن، 71 زخمی۔ ابو عاقلہ کے جنازے پر حملے کے بعد ایک اور بدترین کارروائی۔ لبنان پارلیمنٹ میں حزب اللہ اتحاد میجارٹی سے محروم، 5 سیٹیں کم حاصل ہوئی۔ لیبیا میں نئے وزیر اعظم، ترپولی پہنچتے ہی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ فتحی بشاغہ فوری واپس ہو گئے۔ ماریوپول اسٹیل پلانٹ میں چھپے ہوئے یوکرینی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رشین فوجیوں کے بدلے رہا کیا جا سکتا ہے۔ سویڈن اور فن لینڈ کے نیٹو میں شامل ہونے پر ترکی کا اعتراض برقرار۔ یورپی ملکوں میں رشیا کے خلاف چھٹے دور کی پابندیوں پر اتفاق نہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیان واپی مسجد کی۔ وارانسی عدالت کی طرف سے مقرر کمیشن نے عدالت میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کے لیے اور 2 دنوں کا وقت مانگا ہے۔ عدالت نے منگل تک ایڈوکیٹ کمشنر اجے کمار مشرا اور 2 دوسرے کمشنر سے رپورٹ مانگی تھی۔ جسٹس چندرچوڑ اور جسٹس نرسمہا نے مسجد انتظامی کمیٹی کی درخواست پر سنوائی کی۔ مقامی عدالت نے پیر کو گیان واپی مسجد کے ایک ہاؤس یا وضو خانے کو سیل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ ہندو فریق کے وکیل نے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں ایک شیولنگ پایا گیا ہے۔ مسجد کمیٹی نے کہا کہ وہ شیولنگ نہیں ہے بلکہ وضو خانے کا فوارہ ہے۔ مسجد کمیٹی نے شیولنگ کے دعوے کو رد کرتے ہوئے عدالت میں کہا کہ جس چیز کو شیولنگ قرار دیا جا رہا ہے وہ دراصل وضو خانے کے فوارے کا ایک حصہ ہے۔ وارانسی عدالت نے ایڈوکیٹ کمشنر اجے مشرا کو ہٹا دیا ہے اور سروے ٹیم کو 2 دن کی مہلت دی ہے۔ بتایا گیا کہ غیر مجاز طور پر معلومات ظاہر کرنے پر ایڈوکیٹ کمشنر کو ہٹایا گیا۔ کمشنر کو برطرف کرتے ہوئے عدالت نے سوال کیا کہ کس طرح سروے کی تفصیلات منظر عام پر لائی گئیں، کیونکہ اس رپورٹ کو خفیہ رکھنا چاہیے تھا۔ گمبھیر بات ہے کہ آنریبل کورٹ نے کہا کہ جو وکیل کمشنر نयुक्त ہوتے ہیں ان کا ذمہ داری بہت ہوتی ہے، ان کا پد جو ہوتا ہے وہ لوک سیوک کی باتیں ہوتی ہے، تو ان کو بہت پاردرشتا اور ایمانداری سے کار کرنا چاہیے۔ چونکہ مشرا جی کے جو سہیوگی ہیں آر پی سنگھ، وہ تمام انسٹرکشن کے بعد بھی سوچنائیں میڈیا میں لیک کر رہے تھے، اس لیے کورٹ نے بہت ہی سخت کارروائی کرتے ہوئے ان کو تتکال پربھاؤ سے کمیشن پد سے ہٹا دیا ہے اور وہ کوئی بھی کمیشن رپورٹ داخل نہیں کریں گے۔ کورٹ نے یہ لائبلٹی وشال سنگھ کے اوپر شفٹ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 12 تاریخ سے لے کے جو 3 دن کمیشن کارروائی چلی ہے۔ سپریم کورٹ میں گیان واپی کیس کی سنوائی ہوئی۔ گیان واپی مسجد کے سروے کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے سنوائی کے دوران سوال کیا کہ شیولنگ کہاں پایا گیا۔ اس کیس میں اگلی سنوائی جمعرات کو ہوگی۔ جج نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے شیولنگ کے بارے میں سوال کیے۔ مسلم فریق نے عدالت میں کہا کہ ہم تمام آرڈرز پر روک لگانا چاہتے ہیں، جس میں سروے کا آرڈر بھی شامل ہے۔
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद और मुसलमानों के दूसरे मसाइल और मुल्क के हालात और चैलेंजेस पर गौर किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट की मजम्मत की जिसमें वजू खाने के फव्वारे को शिवलिंग करार दे दिया गया। मालूम हुआ कि इस मीटिंग में ज्ञानवापी मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद, मुल्क के मौजूदा हालात, मुसलमानों के मसाइल पर गौर किया गया और अगले एक्शन प्लान के बारे में सलाह मशवरा किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट को रद्द कर दिया और कहा कि वजू खाने को सील करना काबिल कबूल नहीं है। बोर्ड ने कहा कि वजू खाना सील करना मुसलमानों से नाइंसाफी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद रहेगी। ये फिरका परस्त ताकतों की तरफ से नफरत फैलाने की साजिश है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील रईस अहमद अंसारी ने हिंदू फरीक के दावे को गुमराहकुन करार दिया। अब इंटरनेशनल न्यूज शुरुआत करते हैं लेबनान से। ईरान की मदद रखने वाले हिजबुल्लाह और उसके इत्तेहादियों को लेबनान के पार्लियामेंट इलेक्शंस में मेजॉरिटी से महरूम होना पड़ा। मुल्क के पार्लियामेंट इलेक्शंस के नतीजे सामने आ गए हैं। शिया जमात हिजबुल्लाह के इत्तेहादियों को पूरे मुल्क में नाकामी का सामना करना पड़ा है। हिजबुल्लाह के हामी ब्लॉक ने 61 सीटें हासिल की हैं जबकि उसे मेजॉरिटी के लिए 65 सीटों की ज़रूरत थी। पिछले इलेक्शंस में इस इत्तेहाद को 71 सीटें हासिल हुई थी। हिजबुल्लाह की इत्तेहादी फ्री पैट्रियटिक मूवमेंट पार्टी अब क्रिश्चियन ब्लॉक का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं रही। उसने इतवार को होने वाले इलेक्शंस में 18 सीटें जीती हैं जबकि पिछले इलेक्शंस में उसे 20 सीटें मिली थीं। इस ईसाई ब्लॉक को सऊदी अरब और अमेरिका की मदद रखने वाले क्रिश्चियन ब्लॉक लेबनीज फोर्सेस के मुकाबले में कम सीटें हासिल हुई। हिजबुल्लाह के दूसरे इत्तेहादियों को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा जिनमें द्रूज लीडर तलाल अरसलान और सुन्नी लीडर फैसल करामी शामिल हैं। कई दौर में पहली मरतबा इलेक्शन सबसे बड़े सुन्नी ग्रुप फ्यूचर मूवमेंट के बगैर हुए। इस ग्रुप के लीडर और साबिक वज़ीर आज़म साद हरीरी ने सियासत छोड़ दी है। उनके बाद हामियों ने इलेक्शंस का बॉयकॉट किया है जबकि बाद इत्तेहादियों ने इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए इस इत्तेहाद से ताल्लुक़ तोड़ लिया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि हरीरी के पीछे हटने से जो खला पैदा होगा उसका फ़ायदा हिजबुल्लाह और इत्तेहादियों को होगा और वो बेरूत, सीदोन, त्रिपोली और दूसरे अहम हलकों में अपना असर बढ़ाएंगे। अब पार्लियामेंट में नए वज़ीर आज़म को चुना जाएगा। लेबनान पार्लियामेंट में 128 सीटें हैं। लेबनान एक ऐसा मुल्क है जहां किसी भी मजहबी ग्रुप को मेजॉरिटी हासिल नहीं है। मुल्क में इक़्तिदार की तकसीम के निज़ाम के मुताबिक सदर ईसाई, वज़ीर आज़म सुन्नी और पार्लियामेंट स्पीकर शिया होता है। इम्कान है कि नबील बेरी एक बार फिर स्पीकर चुने जाएंगे जो 30 साल से इस ओहदे पर हैं। बात फ़लस्तीन की। इस्राएली फ़ौज ने एक नौजवान फ़लस्तीनी के जनाजे में शरीक लोगों पर आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया और रबर की गोलियां चलाईं। इस वाक़े में 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। ये फ़लस्तीनी नौजवान पिछले महीने अक्सा झड़पों के दौरान ज़ख्मी हो गया था जिसका इंतकाल हो गया है। सैकड़ों सोगवारों ने वलीद अल शरीफ के जनाजे में शिरकत की। अल शरीफ के सर पर 22 अप्रैल को ज़ख्म आए थे। फ़लस्तीनी सोर्सेस और अल शरीफ ख़ानदान ने कहा है कि उनके सर में रबर की गोली लगी थी लेकिन इसराइली अहदेदारों ने दावा किया था कि वो ज़मीन पर गिरने से ज़ख्मी हुए। इस दौरान झड़पों का वीडियो सामने आया है। इन झड़पों में जिसमें यह नौजवान ज़ख्मी हुआ था, फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज से बचने के लिए भागते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि भागते हुए अल शरीफ गिर जाते हैं और बेहिस्सो हरकत हो जाते हैं। इसके बाद वो कोमा में चले जाते हैं। इसराइली अहदेदारों ने मौत के बाद भी उनकी मैयत को अपने पास रखा था। पीर को ख़ानदान को मैयत हवाले की गई। जनाजे में सैकड़ों लोग शरीक हुए थे जो फ़लस्तीनी झंडे लहरा रहे थे। उनकी नमाज जनाजा मस्जिद अक्सा में अदा की गई। इसके बाद बैतुल मुक़द्दस के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट ने बताया कि 71 फ़लस्तीनी रबर की गोलियां, स्टन ग्रेनेड्स और लाठी चार्ज से ज़ख्मी हुए। एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने जांबहक फ़लस्तीनी के ताबूत को एम्बुलेंस से निकालने वाले एक शख्स को भी गोली मारी। 13 को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। 2 फ़लस्तीनियों की आंख में ज़ख्म आए हैं। इसराइली पुलिस ने बताया कि उसने सैकड़ों फसादियों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दफ्तर ने इसराइली पुलिस पर ज़ालिमाना हरकत का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनाई जाती जिसका दारुल हुकूमत क़ुद्स होगा, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। जॉर्डन की वज़ारत ख़ारजा ने अल शरीफ के जनाजा जुलूस पर हमले की मजम्मत की और इसे गैर इंसानी हरकत करार दिया। वज़ारत ने कहा कि इसराइल को आलमी कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए।
कुछ दिन पहले इसराइली पुलिस ने बदतरीन किरदार का मुजाहरा करते हुए अल जजीरा जर्नलिस्ट शीरीन अबू आकला के जनाजे में हिस्सा लेने वालों पर भी क्रैकडाउन किया था। शीरीन अबू आकला पिछले 4 शंबे को जेनिन में इसराइली ज्यादतियों की रिपोर्टिंग करते हुए जाँ बहक हुई। इसराइली फौज ने उनके चेहरे पर गोली मारी। इस कत्ल की पूरी दुनिया में मजम्मत की गई। इसराइली मीडिया में कहा गया कि शीरीन अबू आकला की शहादत के बदले में फलस्तीनी बड़े पैमाने पर जवाबी हमले कर सकते हैं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने टाइम्स ऑफ इसराइल के हवाले से ये बात कही। इसराइली फौज ने गाजा में दरअंदाजी की। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि 6 इसराइली टैंक्स रफा इलाके में घुस पड़े और मशीन गनों से फायरिंग की। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। गाजा के किसानों ने बताया कि इसराइली फौज बार बार इस तरह की दरअंदाजी कर रही है और उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है और उन्हें काम करने से रोक रही है। लीबिया के दारुल त्रिपोली में अलग अलग फोर्सेस के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं, जिसके बाद पार्लियामेंट की तरफ से मुकर्रर वजीर आजम फतेही बशागा शहर से रवाना हो गए। अलग अलग ग्रुपों के दरमियान झड़पें उस वक्त हुईं जब वजीर आजम दारुल हुकूमत पहुंचे। उन्होंने अब्दुल हमीद बीबा से हुकूमत के मामला संभालने के मकसद से त्रिपोली का सफर किया था। पीर की सुबह जब वो पहुंचे, झड़पें शुरू हो गईं। तबरूक से काम करने वाली पार्लियामेंट ने उन्हें फरवरी में वजीर आजम मुकर्रर किया था। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इस हिस्से की शुरुआत यूक्रेन से। यूक्रेन के सिपाहियों ने मारियोपोल स्टील प्लांट में अपनी अलामती मुजाहमत खत्म कर दी है। यूक्रेन की फौज ने बताया कि सिपाहियों ने अपना मिशन खत्म कर दिया। इसके बाद सैकड़ों सिपाही स्टील प्लांट से बाहर निकल गए। 260 से ज्यादा फाइटर्स को रशिया के कंट्रोल वाले इलाके में ले जाया गया है। समझा जा रहा है कि उन्हें रशियन कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। बास खबरों में कहा गया कि अब भी कुछ लोग प्लांट के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं। रशिया मारियोपोल शहर पर कब्जा कर चुका है। मारियोपोल एक अहम बंदरगाही शहर है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कंफर्म किया कि बाज यूक्रेनी अभी प्लांट के अंदर हैं। सबसे पहले जख्मी सिपाहियों को बाहर निकाला गया। रशिया के हामी अलहदगी पसंदों ने बताया कि मारियोपोल में 256 यूक्रेनी फाइटर्स ने हथियार डाल दिए हैं। समझा जा रहा है कि तकरीबन 600 यूक्रेनी फाइटर्स मारियोपोल स्टील प्लांट में छुपे हुए थे। यूक्रेन के ओहदेदारों ने दावा किया कि रशिया के ताज़ा हमलों में कई हलाकतें हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ईस्ट यूक्रेन में रशिया के सिपाहियों को पीछे धकेला गया। मगरबी मुल्कों के फौजी ओहदेदारों ने कहा है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग में रोजाना के मामलात पर नजर रखे हुए हैं और कई फैसले खुद कर रहे हैं। ईस्ट यूक्रेन के लोहांस और दूसरे मकामात पर रशिया की ताज़ा शेलिंग में 20 लोग मारे गए। यूक्रेन की एयर डिफेंस ने लीव शहर के आसमान पर मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। सुमी शहर में मिसाइल हमले किए गए जिससे 5 लोग जख्मी हुए। रशिया ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन की फौज डोनेट्स्क के आबादी वाले इलाकों पर शलबारी कर रही है। दारुल हुकूमत कीव के करीब 3 सिविलियंस की लाशें मिली हैं। ये लाशें बोचा टाउन में मिली हैं। इस इलाके पर रशिया ने कुछ दिन पहले कब्जा किया था। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर इशारा दिया है कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने में वो रुकावट पैदा करेंगे। तैयब एर्दोगान का इल्जाम है कि फिनलैंड और स्वीडन दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। उनका इशारा कुर्द मिलिटेंट्स की तरफ है। फिनलैंड ने कहा कि वो तुर्की के एतराज़ात पर बातचीत के जरिए इस मसले को हल करेगा। बरतानिया ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की पुरजोर तायीद की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमलन नाटो में फिनलैंड और स्वीडन शामिल है और वो अपनी गैर तरफदारी खत्म कर चुके हैं। रशिया ने कहा है कि वो फिनलैंड के 2 सफारतकारों को बाहर कर रहा है। फिनलैंड के ऐसे ही कदम के जवाब में ये कार्रवाई की गई। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने नाटो में फिनलैंड और स्वीडन के शामिल होने की खबरों को नज़रअंदाज करते हुए कहा है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी मुल्कों से कहा है कि वो यूक्रेन की मदद में इजाफा करें। रशिया के एक ओहदेदार ने कहा है कि यूक्रेन के साथ बातचीत रोक दी गई है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन जंग और रशिया के खिलाफ पाबंदियों के बारे में बातचीत की। न्यूजीलैंड ने बेलारूस के 27 लीडर्स के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है। बेलारूस रशिया का हामी है। जापान ने यूक्रेन के लिए $100 मिलियन कर्ज मंजूर किया है। यूरोपीय यूनियन के वजीरों की एक मीटिंग ब्रसेल्स में हुई, लेकिन इसमें रशिया के खिलाफ छठे दौर की पाबंदियों के बारे में इत्तेफाक राय नहीं हो सका। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अबू धाबी का दौरा किया और शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। यूएई के नए सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस MBS का इस्तकबाल किया। कई मुल्कों के लीडर्स और ओहदेदार अबू धाबी पहुंचते हुए शेख खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत और अफसोस का इजहार कर रहे हैं।
ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے UAE کا دورہ کیا اور انہوں نے نئے صدر سے ملاقات کی۔ ایرانی وزیر نے محمد بن زائد سے ملاقات کے بعد کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور UAE کے درمیان تعلقات میں ایک نیا صفحہ الٹا گیا ہے۔ انڈیا نے جموں کشمیر میں حلقوں کی دوبارہ حد بندی کے بارے میں پاکستان نیشنل اسمبلی کی قرارداد رد کر دی ہے۔ انڈیا نے ایک دن پہلے اس سلسلے میں OIC کے تبصرے کو بھی غیر ضروری قرار دیتے ہوئے رد کر دیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے کہا کہ انڈیا کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا پاکستان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کا پورا علاقہ اور پاکستان کے کنٹرول والے کشمیر کے علاقے انڈیا کا اٹوٹ حصہ ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جموں کشمیر میں حلقوں کی دوبارہ حد بندی کا کام متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت کے اصولوں کی بنیاد پر انجام دیا گیا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اپنا گھر سدھارنے کے بجائے انڈیا کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے اور انڈیا کے خلاف بے بنیاد اور بھڑکیلا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ انڈیا نے اس بات کو دہرایا کہ پاکستان کو فوری انڈیا کے خلاف سرحد پار دہشت گردی ختم کرنی چاہیے اور دہشت گردی کا انفراسٹرکچر برخاست کرنا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان سے کہا کہ وہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ یہ ریویو میٹنگ امرناتھ یاترا سے پہلے ہوئی۔ دہلی میں ہونے والی اس میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا، ریاست کے پولیس چیف دلباغ سنگھ اور دوسرے عہدیداروں نے حصہ لیا۔ انٹیلیجنس بیورو، BSF، CRPF، ITBP اور SSB کے اعلیٰ عہدیداروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب حال ہی میں ایک کشمیری پنڈت سرکاری ملازم کی ہلاکت پر کشمیری پنڈت کمیونٹی حکومت سے کافی ناراض ہے اور حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ وارانسی عدالت نے گیان واپی رپورٹ لیک ہونے پر کورٹ کمشنر کو برطرف کر دیا۔ کمیشن کو مکمل رپورٹ پیش کرنے کے لیے اور 2 دن کی مہلت۔ گیان واپی مسئلے پر سپریم کورٹ میں سنوائی۔ مسلم فریق نے کہا شیولنگ نہیں وضو خانے کا فوارہ ہے۔ سنوائی جمعرات تک ملتوی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہنگامی میٹنگ۔ گیان واپی مسجد اور دوسرے معاملات پر غور کیا گیا۔ اگلے ایکشن پلان پر بات چیت۔ فلسطینی نوجوان کے جنازے پر اسرائیلی فوج کا کریک ڈاؤن، 71 زخمی۔ ابو عاقلہ کے جنازے پر حملے کے بعد ایک اور بدترین کارروائی۔ لبنان پارلیمنٹ میں حزب اللہ اتحاد میجارٹی سے محروم، 5 سیٹیں کم حاصل ہوئی۔ لیبیا میں نئے وزیر اعظم، ترپولی پہنچتے ہی جھڑپیں شروع ہو گئیں، فتحی بشاغہ فوری واپس ہو گئے۔ ماریوپول سٹیل پلانٹ میں چھپے ہوئے یوکرینی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے، رشین فوجیوں کے بدلے رہا کیا جا سکتا ہے۔ سویڈن اور فن لینڈ کے نیٹو میں شامل ہونے پر ترکی کا اعتراض برقرار۔ یورپی ملکوں میں رشیا کے خلاف چھٹے دور کی پابندیوں پر اتفاق نہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔